बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर. Dear first year students, today we are going to start our next lecture on the topic of levels of biological organization. In today's lecture we will discuss the three levels of biological organization. Number one is the population level, number two is the community level, and number three is the biosphere level. So our first level of organization of today's lecture is the population level. Population can be defined as the members of same species living at the same place at same time. For example, the number of students in our biology class and the number of rats in a rice field. In the population level, we also discuss the attributes of the populations, as for example, the gene frequency, gene flow, age distribution, population density, and the population pressure. These are the attributes or the aspects to study or understand the various life phenomena of the populations. अज़ीज़ तलबा, पॉपुलेशन लेवल को देखा जाए तो पॉपुलेशन की तारीफ़ है कि तमाम एक ही स्पीशीज़ के अफराद जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर ज़िंदा रहते हों, वो उस इलाके की उस ख़ास स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बनती है. मिसाल के तौर पर बायोलॉजी के क्लास में एक वक्त में मौजूद तलबा की जो तादाद है वो उस वक्त के तलबा की पॉपुलेशन है, और इसी तरह से किसी खेत में रहने वाले चूहों की तादाद उस खेत के चूहों की पॉपुलेशन बन जाएगी. तो इस पॉपुलेशन लेवल में हम तमाम जिंदा जानदारों के बहुत से दूसरे पहलुओं को भी डिस्कस करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जीन फ्रीक्वेंसी को देखा जाता है, जीन फ्लो को देखा जाता है, और इसी तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी उस आबादी के अंदर बच्चों की तादाद, बूढ़ों की तादाद और इसी तरह से नौजवानों की तादाद वगैरह को देखा जाता है. पॉपुलेशन डेंसिटी के उस आबादी में कितने ज़्यादा अफराद एरिया के एतबार से पाए जाते हैं और उस एरिया पर उस पॉपुलेशन का यानी आबादी का क्या दबाव है यानी पॉपुलेशन प्रेशर को. ये वो तमाम पहलू हैं या एट्रीब्यूट्स हैं जो तमाम ज़िंदा जानदारों के जो एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह पर इकट्ठे ज़िंदा रहने से मार्ज़ वजूद में आते हैं या पैदा होते हैं. तो इस तरह से हम अपने इस पॉपुलेशन लेवल पर इन तमाम पहलुओं को भी स्टडी करते हैं. And the next level of organization is the community level, and community can be defined as the combination of different populations living at the same habitat. And these communities are the dynamic collection of the organisms, and in these community there is a strong relation between the abiotic and the biotic factors. The living organisms includes in the biotic factors, and the abiotic factors changes and affects the population size. For example, a simple community that is small in size and is less stable. For example, the fallen log and the small pond. It is a simple community that has a less area, less number of individuals, and it is also the less stable because any abiotic change can destroy the whole community that is small in size and it is less stable. In its comparison, a community that is large in the size and has more number of individuals, it is the more stable and it is called the complex community. For example, forest and the sea. And these communities are self-sustainable and they resist the changes that occur in the abiotic components of these communities. अज़ीज़ तलबा, कम्युनिटी लेवल को अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ पॉपुलेशंस का इकट्ठे एक ही वक्त में एक इलाके में रहने से कम्युनिटीज़ मार्ज़ वजूद में आती हैं. कम्युनिटीज़ ज़िंदा जानदारों की बड़ी मुतहर्रिक कलेक्शंस हैं या एक मुतहर्रिक जगह है जहाँ पर एक ख़ास स्पीशीज़ की तादाद में इजाफ़ा किसी दूसरी स्पीशीज़ की तादाद में कमी का बायस बनता है, और इन कम्युनिटीज़ में एबायोटिक फैक्टर्स में आने वाली तब्दीलियाँ इन कम्युनिटीज़ की अंदर बसने वाली पॉपुलेशंस के तादाद
और उस पॉपुलेशन के साइज़ पर असरअंदाज होती हैं। अगर तो कम्युनिटी सिंपल है जो कि छोटे एरिया में पाई जाती है और उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की तादाद भी कम है, तो ऐसी कम्युनिटी लेस स्टेबल होती है। जैसे गिरा हुआ दरख्त का तना जिसके नीचे कुछ चींटियाँ हो सकती हैं, जिसके नीचे कुछ स्पाइडर्स हो सकते हैं, जिसके नीचे कुछ फंजाई हो सकते हैं। ये एक सादा सी कम्युनिटी है जो इस गिरे हुए दरख्त के तने जो कि गल सड़ रहा है उसके नीचे पलती है। तो ये लेस स्टेबल है। जैसे ही पानी अगर उस तने से बह जाए तो वो सारी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह से एक छोटा तालाब भी सिंपल कम्युनिटी की मिसाल है। इसके बरक्स एक कम्युनिटी ऐसी जो कि वसी एरिया में पाई जाती हो और उसमें बसने वाले अफराद की तादाद भी ज़्यादा हो, ऐसी कम्युनिटी मोर स्टेबल कम्युनिटी कहलाती हैं, जैसे कि एक जंगल या एक समुंदर। So the next level of biological organization is the biome or the biosphere level. Biome is a large regional community that is determined by the specific climate, as for example the desert. In a biome, the major types of the plants determines the other types of the plants and the animals. Biosphere is the collection of all biomes of the world. That is why it is also called as the zone of life on the earth. अगर बायोम की बात करें तो हम इसको बायोम कहते हैं एक बड़ी कम्युनिटी जो ख़ास किस्म के आबो हवा की वजह से पहचानी जाती है। जैसा कि डेजर्ट्स, सहरा को हम खुश्क और गर्म आबो हवा के एतबार से पहचानते हैं, और किसी भी बायोम में पाए जाने वाले पौधे वहाँ पर पाए जाने वाले दूसरी तरह के पौधों की और वहाँ पर बसने वाले जानवरों की निशानदेही करते हैं। यानी किसी भी कम्युनिटी में पाए जाने वाले अगर हम पौधों को स्टडी कर लें तो हमें उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले दूसरे पौधों और जानवरों की खुसूसियात का अंदाज़ा होता है। इसी ही तरह से बायोस्फीयर इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम बायोम्स का मजमूआ है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये इस ज़मीन पर जोन ऑफ लाइफ कहलाता है। और अगर इस जोन ऑफ लाइफ को, इस नैरो बेल्ट ऑफ लाइफ को अर्थ पर देखा जाए तो ये सतह समुंदर से 10 किलोमीटर ऊपर और सतह समुंदर से 10 किलोमीटर नीचे तक पाया जाता है। यानी ये 20 किलोमीटर लेयर जो है हमारे इस प्लैनेट अर्थ पर, ये बायोस्फीयर की लेयर है। इसमें ही ज़्यादातर जिंदा जानदार बसते हैं। So it is the end of our lecture. Dear students, subscribe and share this channel to the other students. Thank you, good luck and stay blessed.